part of biotechnology and its prospects with reference to genetically modified organism. One question was asked in IS. Question was GM crops, write an essay on GM crops, pros and cons. अब देखेंगे आपको मिल जाएगा. Though I have not gone through the paper, but this I got from somewhere. So first part of pros and cons I have already told. हाँ, उसमें what I have done that I have modified little bit with the correct, because you have to know many more things with one title. Suppose there is one title, you have to know many more things related to that topic. So first, most of the time pros and cons. Few days back I also asked you pros and cons, and some of you replied well. But you have to go in the root of this. What is pros and cons? Pros and cons, you see, this phrase, Italian phrase, pros and cons, is abbreviation of the Latin phrase pro e contra. Pro e contra. Et is again French word. Means for and against. Yeah, advantages and disadvantages, and has been in use in the abbreviated form since the 16th century according to the Oxford Dictionary. The much longer abbreviative alternative is the phrase arguments and against. So it's clear, I think there is no discussion on this topic. What is pros and cons? You must be very, very clear. Now, this part was left. Suppose there is some GM crop developed by any country, are being developed, are going to develop. It is not freehand that you start work with developing genetically modified crop. There are so many regulations, so many regulatory authorities, acts that you have to follow. Otherwise, you cannot develop any type of any GM crop. What are those? First, IBSC. इसका detail I will let you know detail. Institutional Biosafety Committee. RCGM, Review Committee on Genetic Material. GC, Genetic Engineering Approval Committee. MEC, Monitoring and Evaluation Committee. Next, ISA, this is International Services for Acquisition of Agri-Biotic Applications. याद रखना चाहिए, इसको आता है पूछा. तो इसमें from departmental to international, there are committees from departmental to international, even state and district level there are committees. One by one I tell you. The GM crops are regulated in India. कैसे? The rules for the manufacture. ये क्यों? The rules for manufacture, import, export and storage of hazardous microorganism, genetically engineered organism, RCEL 1990, you call it in short the rules 1989. ये रूल्स हैं इसके. कहने का मतलब कि कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या किसी भी रूप में इसको रूल करने के लिए इसको हमको रूल को हमारे लिए रूल बना. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नोटिफाइड इट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये दो एक्ट आपको आने चाहिए, दो होने चाहिए. Also defined the competent authorities and composition of such authorities for the handling of different aspects of the rule. इनकी कमेटी के जो अथॉरिटीज हैं, they are not locally constituted. They are big shots, experts of their own field and appointed by government. Now the competent authorities are as follow. क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज? क्या है? सबके अलग अलग है. रिकम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, RDAC, रिकम्बिनेंट, ये हो गया, एक अलग से हो गया डीएनए का. अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जानना चाहिए, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज इन लोधी कॉम्प्लेक्स, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी गार्डन. ओके. अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी IBSC, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगेन and review RCGM under the Department of Body, again दोनों Ministry of Science. Fourth है GEAC, Genetic Engineering Approval Committee,
अंडर द ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, अंडर द मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री फॉर रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली। इसका जीएससी का काम है कि ये सब रेगुलेट करेगी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेल्स दैट हजार्डस सेल्स। नाउ स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये भी आ गई SBCC, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी सेफ्टी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। सो आपको इतनी थ्रू नंबर ऑफ कमिटीज यू हैव टू मूव। ब्रे बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दिस इंडियन अथॉरिटी बिल 2013 लेटेस्ट, दिस इज लेटेस्ट वन, हैज बीन ड्राफ्टेड टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, द बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ब्रे टू रेगुलेट ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए दो चीज़ें हो गई, अभी तक जितनी पीछे की अथॉरिटीज बताई दे आर रिलेटेड टू नॉर्मली GM क्रॉप्स एंड GM एनिमल्स ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, बट दिस इज रिलेटेड टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब एक नया टर्म आपके लिए लिया गया, नई चीज़ पैदा हो गई। तो व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? सी व्हाट इज प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं? पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, एनिमल सब बता दिए ना, GM क्रॉप GF एनिमल बता दिए। अब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? अब आप समझ में आ जाए। सम ऑफ द बायोटेक बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स include the biological drugs, not chemical drugs, such as vaccines, antibiotics, antibodies, recombinant proteins, for example, hormones, enzymes, growth factor, blood product, etc. Diagnostic tests and kits, cell therapy products and gene therapy. This is modern biotech, जो आजकल कोरोना में भी हम काफ़ी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब one question, vaccine, I think for the last 15-16 years everyone is listening and talking about vaccine. What is vaccine? वैक्सीन का कॉन्स्टिट्यूशन कभी आपको जानना चाहिए। वैक्सीन बनती कैसे है? वैक्सीन में 6 चीज़ें होती हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, एडजुवेंट, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव एंड मे बी जिलेटिन। एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक जो ठीक करती है, एडजुवेंट जो उसको हेल्प करेगा, प्रिजर्वेटिव जो उसको संरक्षण में कि कितने दिन तक हम उसको रख सकते हैं, स्टेबलाइजर जो उसको स्टेबलाइज किया गया कि वो चेंज ना होने पाए जो दवा बनी, एंड जेलेटिन कैप्सूल, यू पीपल ईट कैप्सूल कवरिंग इनसाइड द कैप्सूल देयर इज मेडिसिन अ पाउडर फिल्ड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन क्या है? Gelatin, source of gelatin, you will laugh. Source of gelatin is only intestinal part of skin of animals, maybe cows, buffaloes or something, but you don't know. It easily get digested when you take capsule inside. Anyway, I'm not going to tell now. Supreme कोर्ट, अब इसके बाद इसमें कोर्ट्स भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशंस, देयर इज सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन, आइसोलेशन डिस्टेंस बिटवीन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटेड फीड्स एंड रेगुलर फीड्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम 20 मीटर टू एटलीस्ट 200। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निकाल दिया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जहाँ बोएंगे और उसकी और ट्रेडिशनल क्रॉप जो बोए उसमें डिस्टेंस पहले 20 मीटर थी, इट शुड बी 200 मीटर्स। ठीक है, ये क्या है? प्लांटिंग आइसोलेशन। या तो हम डिस्टेंस आइसोलेशन रखें, क्रॉप में होता है या डिस्टेंस या टाइम आइसोलेशन रखें, दो तरह का। या डिस्टेंस आइसोलेशन दूर कर दिया, पॉलन ना पहुंच जाए एक दूसरे का, या दूसरा हम टाइम आइसोलेशन कर सकते हैं। हमने एक क्रॉप अभी यहाँ लगा दी जिसकी फ्लावरिंग पहले हो जाएगी, दूसरी क्रॉप दूर लगा दी कुछ एक हफ्ते बाद, तो फ्लावरिंग, ताकि दोनों की पॉलन मैच ना कर पाए, पॉलिनेशन के लिए अवॉइड। गेटिंग माई पॉइंट? हाई कोर्ट ने लगा दिया। ड्यूरिंग द फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM क्रॉप ए डेजिग्नेटेड साइंटिस्ट शुड मेक श्योर दैट ऑल द कंडीशंस आर वेयर कंप्लाइड विद। अब देख रहे हैं कि इसमें डेजिग्नेटेड साइंटिस्ट इसको इंश्योर करेगा कि सारी कंडीशंस बिल्कुल कंप्लाइड है, आपने उसको माना है। नाउ व्हाट इज द, कैन यू डाउन इट? नो,
व्हाट इज द मैकेनिज्म टू अलाउ कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया? क्या मैकेनिज्म है जो हमारे इंडिया में जीएम क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के अलाउ करती है? राइट। अब इंडिया में आ जाइए। पहला जीएससी, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये किसके अंडर में? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्या क्लाइमेट सब आ गए ना उसमें। जीसी इज एपेक्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, इनका नाम बढ़ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का। पहले इट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, ठीक है। अब नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट नहीं है तो कोई बात, नो प्रॉब्लम। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोर, ये पूरा जो बताया जीएम क्रॉप का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और स्टोरेज का काम है, ये जीएससी करती है। दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। GSC is also responsible for providing technical approval of proposal with respect to the release of GMOs and products including experiment। अब कोई क्रॉप, GM क्रॉप जो बाहर फील्ड में जाती है तो उसके लिए हम लोगों को, कल्टीवेटर्स को या प्रमोटर्स को या फार्मर्स को हम बताते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन है, उसको पूरा बताया जाता है इनका। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरा ऐसा नहीं आपने बीज दे दिया जाके लगाओ। हाउ? दो all envelope, all container, maybe insecticide, maybe seed, contain methods of application. It contains everything in detail. But it is not farmers cannot read English. Even Hindi he cannot, he may not read. तो उसके लिए आपको कंसल्टेंट को जाके पूरा ढंग से बताना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट ने 2 नियम लगाया, बहुत अच्छा नियम है। हाई कोर्ट प्रिवेंशन इंटरफेरेंस, आई एग्री कि होने चाहिए थे। अभी व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज? देयर इज इंसेक्टिसाइड, टेक फॉर एग्जांपल नुआन, वेरी कॉमन इंसेक्टिसाइड। नुआन इज फॉर द कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाई, बट यू सी एवरीवेयर नुआन इज स्प्रेड unnecessarily. We are increasing pollution in our environment. Environment is what? Air, water, soil and our food system. फूड भी हमारा इन्वायरमेंट में आता है कि इनसाइड फूड प्रोडक्ट, इनसाइड फूड प्लांट, इनसाइड फूड क्राफ्ट, क्या है? दैट इज बेस्ट, दीज ऑल आर बेस्ट हार्बर ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कीड़े मकोड़े फंगाई रहते हैं, तो भी इन्वायरमेंट में आता है। डोंट माइंड ओनली एयर, वाटर एंड सॉइल। नाउ कभी महाराष्ट्र का केस हुआ है जी है, हाँ, अच्छा अभी डिस्कस करेंगे साइडेड। बट एनवायरमेंट मिनिस्टर गिव्स फाइनल अप्रूवल, इसके लिए फाइनल अप्रूवल शुड बी गिवन बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर। हु इज एनवायरमेंट मिनिस्टर नाउ डेज? आपको आना चाहिए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, यस, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक सेंटर में 2 है ना, तो दोनों। हाँ, नाउ द सेफ्टी फीचर्स ऑफ जीएम क्रॉप्स आर असेस्ड बाई, अब सेफ्टी जो जीएम क्रॉप रिलीज कर दिया उसने दे दिया मिनिस्टर ने, अब इसके सेफ्टी मीडियम के IBSC जो जितनी कमेटी बना दी वो क्या करेगी? असेस करेगी। RCGM एंड GSC इस्टेब्लिश अंडर रूल्स 1989 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986, 2 रूल है 89, 86। EPA में कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें एनर्जी प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, एजेंसी भी आती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बायोसेफ्टी गाइडलाइंस and the standard operating procedure, standard operating, most of the time you are SOP, 60 में पूछे SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? हर क्रॉप का अलग होता है, हर मेडिसिन का होता है, हर वर्क का अलग होता है। SOP क्या है उसको डिफाइन करिए। नाउ चौथा, फोर्थ, अप्रूवल ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इज बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ केस बाय केस बेसिस। हाउ? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस framed by the ICMR. What is ICMR? अभी कोरोना में आपने ICMR का खूब नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देयर आर काउंसिल, नंबर ऑफ काउंसिल इन इंडिया। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड, तो देयर आर सो मेनी काउंसिल्स फॉर डिफरेंट फील्ड्स। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस framed by the ICMR, safety assessment is designed to identify the presence of any hazard, nutritional or other safety concerns। जैसे अभी कोरोना में ICMR ने गाइडलाइंस दी थी, उसके डॉक्टर आई थिंक आई एम मिसिंग गुलेरिया साहब, तो एम्स के थे शायद,
वो आप ना मिसिंग इज नेम, कि गाइडलाइंस देते थे कि कैसे कैसे यूज करना है, ऐसा ना हो कि टॉक्सिक हो जाए या यूजलेस हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंसर्न्स। अब ये तो अभी था प्रोस, ये सारे पढ़ रहे थे प्रोस के पार्ट। अब कंसर्न यानी डिसएडवांटेज आर अगेंस्ट क्या है, कंसर्न भी अगेंस्ट। असेसमेंट, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द प्रेजेंट सेफ्टी असेसमेंट्स आर इनसफिशिएंट। अभी हमारे यहाँ जो भी जितनी रूल्स बता दिए गए उसके हिसाब से हमें चलना है, लेकिन इट्स फैक्ट, ये फैक्ट है। जैसे हमने एक नुआन का एग्जाम्पल दिया, एवरीथिंग इज रिटन प्रिंटेड ऑन द कंटेनर अ बॉटल आर वायल ऑफ दैट इंसेक्टिसाइड, but neither that can be read by farmer, nor that is translated to farmers, nor that is told to farmer. Farmers take the message, okay भैया I know, मैं सब जानता हूँ, मैं छिड़क लूँगा, चिंता मत करो, मैं मुझे मानना आता है। और he will spraying the insecticide till the insect dies before his eyes, जब तक उसकी आँख के सामने नहीं मर जाए तो डालता रहता है, without knowing its ill effect in long term। इसका ill effect क्या होगा वो जानता नहीं। तो सिमिलर इज द केस विद GM क्रॉप, आज भी हमारे यहाँ लगा दे रहे हैं, उसका कोई वही। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द प्रेजेंट सेफ्टी असेसमेंट्स आर इनसफिशिएंट टू कैच मोस्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द GM क्रॉप, बहुत है, बिकॉज द रेगुलेटरी रेजिम इन इंडिया हैज नेवर असेस्ड द GM क्रॉप्स thoroughly with respect to the Indian condition, except one or two characters। मोस्ट ऑफ द करेक्टर्स आर नेग्लेक्टेड, अभी तक देखे ही नहीं गए, ना तो असेस किए गए हैं। ये बहुत ही इसमें थारो उस असेसमेंट की जरूरत है। दूसरा, इम्पोर्टेड GM क्रॉप्स, इम्पोर्ट जो होती है, आपने सुना होगा इम्पोर्ट, जब हम बाहर से यहाँ से बाहर जाते हैं ह्यूमन, सबका मेडिकल चेकअप होता है, बाहर से यहाँ आते हैं तब की मेडिकल चेकअप होता है। इसी तरीके से लाइकवाइज व्हाट एवर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, एनियल कमोडिटीज आर इधर एक्सपोर्टेड आर इम्पोर्टेड, एवरीथिंग इज चेक्ड एट क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन भी आपने कोरोना में सुन लिया, इस पे क्वारंटाइन पे मैं एक डिटेल लेक्चर दूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है? एयरपोर्ट पे है, सी पोर्ट्स पे है। आप कोई भी सामान आएगा पहले एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे उतार दिया जाएगा, उसके लिए एक चैम्बर बना होता है अलग से, सेपरेट में, आइसोलेशन में, वहाँ कुछ दिन रखा जाएगा जस्ट टू ऑब्जर्व कि इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, ग्रोथ तो नहीं हो रही है, या इंसेक्ट तो नहीं है, इधर लेफ्ट राइट भाग रहे हैं, वो तो उसके डिटेल में बताएंगे। उसका क्वारंटाइन चेक, हमारे पास जो भी सीड आता है, हमने तमाम क्रॉप सीड हमने जो हमारे फूड ग्रेन मंगाए बाहर से, टेक फॉर एग्जाम्पल व्हीट, जब व्हीट हमारा PL 480 स्कीम में 1968 में इंडिया में आया तो दैट कैरियड फ्यू सीड्स ऑफ पार्थिनियम। यू नो पार्थिनियम ग्रास या कांग्रेस ग्रास, अरे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, एवरीवेयर ग्रोइंग ऑन रोड साइड्स। दिस काजेज अस्थमा इन ह्यूमन, एलर्जी इन ह्यूमन, or that has spread all over the country. That is exotic plant. We could not, we did not see, we did not analyze। हम अपने क्वारंटाइन में लाए जेट्रोफा जो बता रहा है, ये भी हमारे पास आ गया गलती से, लेकिन जेट्रोफा वी इंडियन हैज बीन एबल टू हार्वेस्ट दिस पोटेंशियल। इसी तरीके से हमारे पास लंटाना एक प्लांट है, लंटाना का खूब प्लांट्स के लाल पीले फूले रहते हैं, लंटाना हैज कम फ्रॉम मैक्सिको। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज थ्री प्लांट, लंटाना, पार्थिनियम एंड जेट्रोफा, ऑल आर फ्रॉम मैक्सिको, दैट हैज कम टू इंडिया बाई मिस्टेक, या लंटाना हैज बीन ब्रॉट बाय सम इंग्लिश पीपल एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट विदाउट नोइंग इट इज इल इफेक्ट, एंड दिस प्लांट इज ग्रोइंग एवरीवेयर इन इंडिया। व्हाट हैज हैपेंड? This is competing with our food crops, यानी the same plant is growing with the same soil nutritions, soil शेयर कर ले रहा है, और it is very difficult to eradicate। Anyway, leave it। हम थोड़ा सा now imported GM crops, there is lack of sufficient machinery to test the imported GM crops। हमारे पास मशीनरी नहीं है। There is only one food lab in Kolkata under the Ministry of Health and which is not well equipped। ये एक ही है जो equipped नहीं है। Conflict of interest, all the safety tests for regulatory approvals in India are conducted by the same party that applies for commercialization of GM crops as well।
वाई आपने सुना पेपर लीक आउट हो जा रहे हैं एग्जाम में, लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एग्जामिनिंग एजेंसीज हैं सीबीटी की जो करते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, देयर इज नो मेनी मोर एजेंसीज लाइक दिस। वो मोनोपोलाइज किए हैं, एक दो हैं, तो इसलिए कुछ अपना इफ एंड बट जानने नहीं देते, प्रोस कॉन्स नहीं दिखाते, उसके एडवांटेज नहीं जानते, तो अपना एज पर विल दे। एक मैं जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, सिमिलर इज द केस जीएम क्राफ्ट, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते ना, हम कर पा रहे हैं। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी कंसर्न्स, जेनेटिक जीएससी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, GSE refusal to publicly release the safety testing data submitted for regulatory approval of the BT brinjal and GM mustard, ये दोनों बंद कर दी गई until GM opponent submitted a right to information। ये कह रहा है कि इसने GSE इसने रिफ्यूज कर दिया है, डेटा सबमिट करने के बाद रिफ्यूज कर दिया ग्रो करने के लिए, फिर भी हम ग्रो करने को चाह रहे हैं। और इस तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई पब्लिक ओपिनियन ना हो, आरटीआई न लगा, आरटीआई करके पूछे इफ एंड बट प्रोसेस कौन, जब तक ना जाना जाए पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि वाट एवर जीएम क्राफ्ट वी ब्रॉट बीटी कॉटन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग विदाउट चेकिंग एट द सीपोर्ट एयरपोर्ट, विदाउट गोइंग थ्रू क्वारंटाइन चेक, विदाउट टेकिंग डिटेल डेटा बाय एक्सपर्ट। तो दिस हैज हैपेंड। और नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? BT cotton has yielding nowadays less. Why BT cotton we took? Just for increased production and productivity. Because it is very useful. ये बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। तो अब nowadays that is going to decrease. Because अभी इसमें बताएंगे क्यों। BT cotton was introduced in India to control. There is one serious pest of BT cotton. Cotton का एक serious pest है, insect pest है, वो कहलाता बॉल वॉर्म। अगेन दैट इज अमेरिकन, दैट इज एक्सोटिक इंसेक्ट ब्रॉट, ये केम बाय मिस्टेक टू इंडिया, दैट हैज फ्लरिश्ड लाइक एनीथिंग, दैट इज सीरियस पेस्ट, सीरियस डैमेजिंग इंसेक्ट ऑफ बॉल वॉर्म। बट कॉटन इज ए क्रॉप वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेस्ट आर अवेलेबल, सबसे ज़्यादा मोर देन 1000 इंसेक्ट्स, फंगस एंड माइट्स एंड द डैमेज दिस क्रॉप। We have taken only one crop, only one insect, bollworm. Now tell me, what would happen to other? Because this gene, the gene which we pour, the gene which we introduce in some host plant, that is responsible for only one character. That will kill only one insect, bollworm, or instabilize जिस ऑर्डर को उसी को, बाकी को नहीं मार पाएगा। What has happened? Bollworm is gone. बट द माइनर इंसेक्ट, माइनर पेस्ट, जिसकी हम कहते रहे क्या बिगाड़ लेगा कॉटन का, दैट हैज बीन मल्टीप्लाइड, दैट इज मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग, दैट हैज बिकम मेजर पेस्ट। तो सो वी आर गोइंग टू लूज आवर बीटी कॉटन इन फ्यूचर आल्सो, दिस इज कंसर्न। एनीवे, द टेंडेंसी टू ऑपरेट इन secrecy हैज क्रिएटेड a serious disrupt on गवर्नमेंट एंड द प्रमोटर्स ऑफ द जीएम क्राफ्ट। ये हमारी इंडियन टेंडेंसी है। हम कोई भी जड़ी बूटी पा जाते हैं, किसी को बताते नहीं, हम सक्रेसी में करते नहीं, मैं ही अकेले बना, हम ओपन नहीं करते, लोगों को शेयर नहीं करते हैं। इसी तरह लेबोरेटरी, हमारी लेबोरेटरीज बहुत सी हैं, वो चुपचाप काम करते हैं, किसी शेयर नहीं करती हैं। दैट्स वाई वी आर फेल्ड टू पब्लिश आवर रिसर्च पेपर इन साइंस एंड नेचर जर्नल, बहुत कम हमारे पास है नेचर साइंस में। हम वी डोंट ट्राई टू शेयर विथ ईच अदर। अगर आपस में शेयर करें, संवाद करें, तो देयर आर मेनी मोर थिंग्स वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। नाउ व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी? कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? टास्क फोर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन 2003 बना है। यू नो MS स्वामीनाथन? ही इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट? तो स्वामीनाथन is suggested, committee task force suggested the establishment by an act of parliament an autonomous statutory and profession led by national biotechnology regulatory। इन्होंने कह दिया कि इसको पार्लियामेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, और स्पेशली जो आपको गौतम जी ज़्यादा बता देंगे, ला के आदमी हैं, ये सब होना चाहिए, इसका इंटरवेंशन इसका इंटरफेरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेकर ग्रो करिए। नाउ
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर पे क्या कहती है? इन इट्स न्यू रिपोर्ट कल्टीवेशन ऑफ जीएम फूड क्रॉप्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड इफेक्ट्स मेड द फॉलोइंग मेजर रिकमेंडेशन। क्या बताया? ये है द गवर्नमेंट मस्ट नॉट अलाउ फील्ड ट्रायल्स। सपोज यू डेवलप जीएम क्रॉप, तुमने बताया था, हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया था। जीएम क्रॉप दिखाने के बाद उसको हम टेस्ट ट्यूब से फील्ड में ले जाते हैं। फील्ड में जब ले जाते हैं, फील्ड में डायरेक्ट नहीं ले जाते हैं, दैट प्लांट इज टेकन इन कंटेनमेंट हाउस। आपने कोरोना में कंटेनमेंट जोन सुना होगा। कंटेनमेंट हाउस मीन्स एवरीथिंग इज ऑप्टिमम, नथिंग कैन कम इन, नथिंग कैन गो आउट। उसमें जब प्लांट डाल दे उसके बाहर न जा सकता है कोई, न कोई आ सकता है, जस्ट टू चेक द स्प्रेड ऑफ एनी रॉन्ग थिंग। समझे ना? तो इस तरीके से कोई ना आज कंटेनमेंट, तो प्लांट को हम कंटेनमेंट में उसको एक्लेमेटाइजेशन के लिए रखा जाता है, एक्लीमेटाइजेशन कई दिनों तक। व्हेन द क्रॉप इज ओके देन इट इज ट्रांसफर टू फील्ड कंडीशन, तब फील्ड में ले जाया जाता है। नाउ द गवर्नमेंट मस्ट नॉट अलाउ फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स अंटिल देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिवैम्प्ड मल्टीडिसिप्लिनरी रेगुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। The committee studied the regulatory system in several countries and found that one in Norway. ये कमेटी हर जगह सर्वे किया और नॉर्वे के अलावा कोई रिवैम्प्ड। व्हाट इज रिवैम्प्ड? मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुआयामी रेगुलेट। व्हाट इज रिवैम्प्ड? सब वर्ड नहीं जानेंगे बच्चों तो आप समझ रहे। सुधार करना, पुनरुत्थान, ये छोटे छोटे वर्ड को भी आपको जानना, तभी तो सेंटेंस बनेगा। एक बच्चा कह रहा था इंग्लिश का माती, कोई बात नहीं, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन लर्न एवरीथिंग, ऑल लैंग्वेजेज, ऑल सब्जेक्ट्स। ये जहाँ बैठे हैं यहाँ से दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, साइंस, बायोलॉजी, आर्ट, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, एंड सारे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने को। नाउ सेकेंड है द गवर्नमेंट शुड असेस द रिसर्च रिपोर्ट्स एंड असेसमेंट बाय इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ऑफ द बीटी ब्रिंजल बाय एन एजेंसी अदर दैन जीसी। ये कह रही कि हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अलावा गवर्नमेंट को एम्फेसिस देनी चाहिए कि एक्सपर्ट भी उसको असेस करे। कमेटी कह दी ओके, कमेटी जस्ट टू गेन हिज हर नेम एंड फेम, ओके इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई कहेगा सर इसमें प्रॉब्लम नहीं चलेगा, नो, देयर शुड बी सम। कमेटी भी कहती है कि एक्सपर्ट भी उसको असेस करे। ए थारो इन्वेस्टिगेशन must be conducted into the permission provided for the commercialization of BT brinjal right from the beginning till a moratorium was imposed in 2000. Unluckily BT brinjal and BT mustard has been stopped by the Supreme Court या court decision। उसको बोल दिया कि court has asked first take public opinion। तो इसका मोराटोरियम इम्पोज। व्हाट इज मोराटोरियम? ये वर्ड जानना चाहिए। रोक, 2010 में रोक लगा दी गई थी। एनीवे, चौथा री इवैल्यूएशन ऑफ ऑल रिसर्च फंडिंग्स इन बीटी कॉटन सीड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज दैट हाईलाइटेड अनएक्सप्लेनेबल चेंजेस इन द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ बीटी कॉटन सीड फिट टू लैब। हम आप समझा देते हैं। बीटी कॉटन सीड क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे तेल भी निकलता है, इससे हमारा कैटिल और पोल्ट्री फीड भी बनता है। बिकॉज बीटी कॉटन का जो दैट इज रिच इन प्रोटीन, बीटी कॉटन इज रिच इन प्रोटीन। हमने फिश को बताया था, फिश मील भी तैयार होता है, फिश मछली को सुखा करके वो भी बनाते हैं फीड। तो जानवरों के दो तरह के फीड होते हैं। जानवरों के आज आप ग्रेजिंग कराइए या आप काऊ या कैटल सेट में बांध के स्टॉल फीडिंग कराइए, भूसा चारा दे करके, ग्रीन फोडर है। या तो आजकल का क्या आ गया, कमर्शियल में आ गया दो तरह की फीड, उसको बोलते फोर्टिफाइड फीड। जैसे बच्चों को सेरेलैक दिया जाता है, ये सब दिया नहीं जाता है, फोर्टिफाइड फीड है। दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशनल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ए बेबी। बूढ़ों को भी दिया जाता है। तो फोर्टिफाइड फीड में कैटल में दो तरह के, एक उसको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना विटामिन, मिनरल, साल्ट कितना चाहिए, सबका रेशियो में मिला करके फोर्टिफाइड फीड बनता है। देयर आर टू फॉर्म। अगर मिक्स करके पीस करके बना दिया तो पाउडर फॉर्म में होता है, मिक्स फॉर्म में दलिया के रूप में होता है। सेकंड कहते नहीं ये ठीक नहीं, तो बत्ती के ऐसे चाक, जैसे चाक होती बत्ती बत्ती की तरह बना दिया जाता है, उसमें मोलेसेस डाल देते हैं और दैट इज थ्रू मशीन।
और फैक्ट्रीज में बनता है, मोलासेस डाल के पैलेट के रूप में चला, जैसा कटा आपने देखा कपिला फीड गायों के लिए तमाम फीड आते रहते हैं, ये कहते हैं फोर्टिफाइड फीड। यानी आएगा भी। तो ये कह रहा है कि जो इनको ये जो फीड को कर्नल बीटी कॉटन के कर्नल के सीड को निकाला गया और भेड़ को खिला दिया गया, इसके तमाम आर्गन में इसके जो है बीटी के असर देखे नहीं गए, जबकि चेंजेज आ गए। हम क्या देख रहे हैं? ओनली एलर्जी। सो फार वी आर मेंट टू सी द ओनली एलर्जी, दिस एलर्जिक। उसके तमाम टिश्यूज आर्गन में चेंजेज आ गए, तो इट शुड बी मॉनिटर्ड। मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम जीएम क्रॉप, उसका फर्स्ट क्लास लेबलिंग होनी चाहिए जीएम प्रोडक्ट, जैसे सब चीज़ वायर स्पेसिफिसिटी पे हर चीज़ होना चाहिए। नाउ अनचेक्ड इंपोर्ट ऑफ जीएम प्रोडक्ट शुड बी स्टॉप। देखिए अनचेक्ड कहाँ चेक होगा? एट द पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, मीन्स एट क्वारंटाइन सेंटर, सी पोर्ट और एयरपोर्ट। आप देखिए कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर एंड क्रॉप्स, मैंगोज we export to other countries, best quality. We don't eat it, we export it. और if there is some problem, वो एक्सरे के थ्रू गुजारना होता चेक। सपोज देयर सम इंसेक्ट इनसाइड द सीड, मैंगो की सीड में एक बार पकड़ा गया था, एक कीड़ा मिल गया, टोटल कंसाइनमेंट वाज रिटर्न बैक टू इंडिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ बाहर से। बट व्हाट एवर कम टू इंडिया, दैट इज नॉट thoroughly checked and we accept everything। उन्होंने कहते साल आजकल वो आ रहा है, सॉरी फॉर अनपार्लियामेंट्री वर्ड, बांग्लादेशी कपड़ा हम पहन रहे हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? इस शुड भी, इसको भी चेक करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ जीएम और फूड, इसे भी चेक करना है कि आवर क्लोथिंग इज आल्सो बेस्ट हार्बर ऑफ बॉडी लॉस। इसके एक्स बॉडी लॉस, सुनो बॉडी लॉस होते हैं लोगों को, एक तो हेड लॉस होता है, बॉडी लॉस, चीलर जिसे कहते हैं गांव में, मजदूरों में, यहाँ के मजदूरों में होता है, वो भी होता है, ये भी नुकसान करता है। एनीवे, तो अनचेक्ड इंपोर्ट ऑफ जीएम प्रोडक्ट्स से बैन कर देना, स्टॉप कर देना चाहिए, इसको लौटा देना चाहिए। इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम जीएम क्रॉप भी कर रहे हैं तो वी मस्ट इनकरेज या वी मस्ट गिव एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ हाई पावर्ड पैनल ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, एक और आ गया DFI, डबलिंग फार्मर्स इनकम, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो gave emphasis on doubling farmers' income. Made the following observation: genetic engineering is a powerful tool for growing future crop, but for now it should be adopted only for non-food crop. Certainly, GM is genetic engineering is powerful tool for increasing production and productivity of GM crop, but seeing its consequences, adverse effect, we should we should not go for non-food crops. हमको non-food crop में नहीं जाना चाहिए. It should be adopted only for non-food crop. Sorry, ये इसको जेनेटिक को हमें non-food crop के लिए अडॉप्ट करना चाहिए. जब हमको पता है एलर्जी होती है, लैम्प को खिला दिया, प्रॉब्लम आ रही टिश्यूज में, तो हमें फूड क्रॉप में जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम नॉन-फूड क्रॉप जैसे मानो जैसे एक्वेटिक प्लांट है, एल्गी है, हम उसमें बढ़ा दें. एल्गी, हालांकि एल्गी भी खाई जाती है, लेकिन ऐसे जितना एज मच इज ग्रीनरी यू पुट इन ओशन, देयर विल मैक्सिमम रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. फॉरेस्ट वी कैन गो फॉर, फॉरेस्ट में वी नीड टिम्बर एंड वी नीड ऑक्सीजन. तो फूड हम नॉन फूड क्रॉप में कर सकते हैं इसको, फूड क्रॉप में हमें नहीं करना चाहिए. ये किसने किया, ये कभी ये हाई पावर्ड पैनल इनका विचार है. फॉर ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप क्वेश्चन ऑफ इज सेफ्टी मस्ट बी रिजॉल्व एंड सेटल्ड फर्स्ट. अभी इसके हमारे से फूड क्रॉप के लिए इसके अभी बहुत कुछ करना है. इसको वैसे इसको तय कर लिया जाना चाहिए और कोई नया चीज़ सेटल करना चाहिए, कोई SOP इसको हमको फिक्स करनी चाहिए. करें ना करें, वी शुड नॉट गो ब्लाइंडली फॉर. कॉटन इज ओके. कॉटन में हम क्या कर रहे हैं, फॉर क्लोथिंग इट्स ओके, कॉटन इज फॉर वूल, कॉटन फॉर आवर क्लोथिंग, बट फॉर फूड मटेरियल फॉर फोर्टिफाइड इज नॉट गुड. हम बहन को खिला के
हम उसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, अब जरूरत क्या है? रिसर्च। ए प्राइमरी चैलेंज टुडे इज टू डेवलप लो इनपुट हाई इनपुट एग्रीकल्चर, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीएम क्रॉप्स is produced or developed at very high cost. इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सो मेनी लेबोरेटरी, साइंटिस्ट, पीपल, कास्ट फेल हो जाता है, बहुत पैसा लगता है। तो इसको क्या करना है? हमें लो इनपुट आउटपुट, और हमको हाई आउटपुट हाई होना चाहिए। हमको इसमें लो इनपुट एग्रीकल्चर इनपुट, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनपुट? इनपुट डजंट मीन ओनली मनी। इफ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इनपुट, उसमें फर्टिलाइजर, सीड, फीड, और ये इरिगेशन, पेस्टिसाइड, आपके फावड़ा, कुदाल, ये सब एग्रीकल्चर इनपुट में आते हैं, राइट? तो इसका कम से कम हमें इस्तेमाल होना चाहिए, कम, और हाई इनपुट, हाई आउटपुट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी मस्ट बी हाई। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट टेक्नोलॉजी। However, there needs to be extensive research to ensure that technology does not undermine human and environmental health. या इसके लिए बहुत तगड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तो वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप एनी जीएम क्रॉप्स। ब्रिंजल एंड मस्टर्ड वी डेवलप, बट दैट हैज़ बीन बैंड, स्टॉप्ड विद द परमिशन ऑफ आवर ऑनरेबल कोर्ट, और अभी कुछ हो नहीं रहा है इसमें, हम नहीं कर पा रहे हैं। बट द क्रॉप विच वी आर ग्रोइंग फ्रॉम आउटसाइड, इसमें भी हमें देखने की ज़रूरत है। नाउ दूसरा है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। द इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक decisions of GM technologies according to the scientific evidence। हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जीएम क्रॉप कोई भी बाहर से आ रहा है, उसका साइंटिफिक एविडेंसेस क्या हैं, कौन से के, मतलब अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम है तो नहीं, उसमें एलर्जी है तो नहीं, उसमें लैब में या टिश्यू में चेंजेस तो नहीं है, या कोई सुपरवीट तो नहीं डेवलप हो रहा। आपने पहले सुपरवीट बता दिया था, अभी आएगा मतलब। दूसरा, शुड अडॉप्ट ए पार्टिसिपेटरी अप्रोच फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स टू डेवलप रेगुलेटरी प्रोडक्ट। दिस शुड क्रिएट ट्रस्ट इन द होल। इसमें आपने बताया कि हम लोग सक्रेसी में यहाँ छिपा के काम करते हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ डिस्ट्रस्ट, हम वी आर डिसऑनेस्ट। तो सो टू मेक एवरीथिंग ट्रांसपेरेंस, हम सारे स्टेक होल्डर्स को, सबको, अलग अलग स्टेक होल्डर, आपको जो फार्मिंग करते हैं, पपीता की कोई फार्मिंग करता है तो ही डजंट नॉट टेल टू एनीवन, अरे हम तो बीज वहाँ से लाएगा, लोकल बताएगा हम महाराष्ट्र से ला रहे हैं। तो झूठ बोलते ज़्यादातर पीपल टेल ए लाई जस्ट टू वो अपनी बूस्टअप करने के लिए, अपनी कहते हैं एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज पार्ट्स, एवरी पोर्टर प्रेजेज हिज पार्ट्स से मोहरा सुना है ना, हर कुम्हार अपना घड़े को सही अच्छा बताता है। तो लाइक वाइज फार्मर्स डू, वो बताएंगे नहीं, कहेंगे हमारा सबसे अच्छी क्रॉप है वो। इनको सबको एक साथ लाना पड़ेगा। नाउ थर्ड, फार्मर्स इंटरेस्ट। अब फार्मर्स का क्या इंटरेस्ट है? एनी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन फार्मिंग सेक्टर शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये फार्मर्स के इंटरेस्ट में होना चाहिए। फार्मर्स का इंटरेस्ट ये है कि कंज्यूमर्स को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फार्मर्स ग्रोअर है, वो भी कंज्यूमर है, बट लार्ज जितना इंडिया में क्या है, 75% पीपल लिव इन विलेज, रूरल इंडिया। आउट ऑफ 70, अबाउट 70-72% लिव ओनली ऑन एग्रीकल्चर। ओनली 3 to 5% हम लोगों की तरह हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कुछ करे, बट लार्ज पॉपुलेशन इज बेस्ड ओनली ऑन एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट, convince all stakeholders. The most important job for the promoters of GM technology is to convince consumers, environmental activists and farmers that among several alternatives exist for sustainable food production, GM technology is one of the best options to improve crop yields and resolve India's food security. No doubt GM technology is best option टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लेकिन तीन चीज़ें आ गई इसमें, एक तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आ गया, दूसरा आपका आ गया है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। सस्टेनेबल, आप एवरी डे यू लिसन दिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ,
चलिए इतनी हिंदी हमको नहीं आती, और समझाइए जी में। आप किसान को जो आप भाषा बोले हैं, किसान को कैसे समझा देंगे? इसलिए कहता हूँ मेक एवरीथिंग वेरी इजी। ऐसा विकास करो कि तुम्हारा बेटा हम शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं। सर, सुनाने का तात्पर्य है कि आने वाली पीढ़ियों नो नो एक्सप्लेन। टिकाऊ विकास यार, आप टिकाऊ नहीं कर सकते। वो जो आप सस्टेनेबल बता रहे हो तो जानते ही हैं, किसान को तो बताएं अब टिकाऊ कैसे होता है। हाउ टिकाऊ? एवरी ईयर वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड ऑन आवर क्रॉप्स, ओके, एवरी ईयर, एवरी सीजन। दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ऑन द अदर हैंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम विथ फूड एंड एनवायरमेंट, राइट? इवन ह्यूमन हेल्थ हजार्ड। तो हाउ टू डेवलप सस्टेनेबल? आपको मैंने बोला, सपोज यू सेलेक्ट, कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई प्रेडेटर, इनमी ऑफ दैट इंसेक्ट। जैसे बॉलवर्म है, तो कॉटन में एक इंसेक्ट बॉलवर्म, अमेरिकन वर्म, उसको हमने अभी जीएम से कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड से करते हैं, वो भी जरूरत नहीं है। अगर उसका हम इनमी कलेक्ट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें और इनमी को फील्ड में लिबरेट कर दें, छोड़ दें, तो प्रेडेटर की एक क्वालिटी होती है कि उसकी सर्चिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और कहीं भी डाल दीजिएगा अपने होस्ट को ढूंढ लेगा, कहीं भी डाल। जब पानी बरसा तो आप भी अपनी जगह ढूंढ लेते कि नहीं? आप खड़े थोड़े सड़क पे बिकते हुए, आप भी तो पेड़ कहीं छत ढूंढ लेते हैं। भूख लगेगी तो कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, भूख लगे तो ढूंढ लेंगे, कहीं तो ठेले पे लाई खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, खाना खा लें। तो इंसेक्ट वो भी चाहिए उसको खाना, उसकी सर्चिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी बहुत होती है। वो उसको ढूंढ के उसमें अंडा दे के खाने लगेगा। और इफ परसिस्ट इन नेचर, अगर ये बन गया एक बार, दो इन द बिगिनिंग इट इज इकोनॉमिकल, इट इज थोड़ा कास्ट एक्सपेंसिव इन द बिगिनिंग एंड लिटिल बिट टेक्निकल, बट वंस इट्स established in the nature, it will remain forever. Then there will not be any type of requirement of non-conventional expenditure, like कि हर साल आप छिड़कते रहिए, छिड़कते रहिए, छिड़कते रहिए। और दिस नेचर हैज गिवन टू अस, नेचर ने तो हमको दे ही रखा है, ऑलरेडी कर रहे तो हम लोगों ने एनीवे। ये हो गया इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। हाँ, इनसे पूछा था, इन्हें नहीं दे रहा। अभी जीएम क्रॉप के दो बहुत अच्छी लेडीज हैं, पूछा जाता है, इनमें नाम नहीं दिया, ढूंढ लेना गूगल में। वन इज सुमन सहाय, दूसरी लेडी का नाम मैं भूलना भी याद आ जाएगा थोड़ी देर में, मेमोरी कम होती है। ये दोनों अगेंस्ट जीएम रहती हैं। इनका क्यों है जीएम के खिलाफ? कि जीएम में हमने दिखाया हर्बिसाइड रेसिस्टेंट भी हमने जीएम बना दिया, वीडिसाइड रेसिस्टेंट भी बना दिया, हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी बना दिया, डॉट रेसिस्टेंट भी बना दिया, राइट? डिजीज रेसिस्टेंट में हमने जीएम बना दिया। तो उनका कहना है कि जीएम अगर वीडिसाइड बना देंगे तो सिंस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज लेबर इंटेंसिव and millions of people depend for their livelihood यानी bread butter, यानी अपनी रोजी रोटी के लिए on agriculture. Suppose we had developed herbicide resistant, weedicide resistant crop, what had happened to this millions of people? उनका ये कहना है, उनको काम कहाँ से देंगे आप? और एक जीन दूसरे जीन को कर देगा। तो दो लेडी ने, एक है ये सुमन सहाय, कभी आ जाता, मैं नाम बता दें। और इंटरनेशनली दे कीप ऑन मूविंग थ्रू आउट द कंट्री, दे टॉक अगेंस्ट ऑफ सेकंड हुज नेम इज मिसिंग, दैट इज इंटरनेशनल हीरो लेडी, बहुत अच्छा, आई हैव मेट विद देम। नाउ हैज रिचली डिक्लेयर्ड द फूड एंड एग्रीकल्चर, अब एफएओ भी आ गया इसमें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिचली डिक्लेयर्ड इन 2004, राइटली declared in 2004 that science cannot, देखिए अब साइंस की पोल खोल दी उन्होंने, साइंस कैन नॉट डिक्लेयर एनी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली रिस्क फ्री। साइंस कभी एक दावा नहीं कर सकती, खुदाई का दावा नहीं कर सकती साइंस कि मैं खुदा को, ईश्वर को बना दूंगा। कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई है, ये नहीं कह सकती कि हम
सपोज कंप्यूटर ही बना दी, फैन बना दिया, वो ये नहीं कह सकती कि रिस्क फ्री है। WHO का कहना है रिस्क फ्री, सब में रिस्क होता है। अब मोबाइल लेके रहते हैं, रेडिएशन का इफेक्ट सुना ही सुना है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट मार देगा क्या होगा, सब जगह रिस्क फ्री नहीं। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स कैन डिक्रीज सम इन्वायरमेंटल रिस्क, यस कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क को डिक्रीज कर सकती है एसोसिएटेड विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में कीड़े बहुत लगते हैं, वीड बहुत आता है, या हमें प्रोटीन बढ़ाना, तो वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउएवर इट विल आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू चैलेंजेस दैट शुड बी इफेक्टिवली एड्रेस। लेकिन साथ ही साथ तमाम चीज़ों को इफेक्ट कर देती है जो हमें एड्रेस करना, बताना बहुत ज़रूरी है। नाउ प्लांट प्रोडक्ट्स, एक आपको बताया है, थोड़ा पहले चैप्टर में भूल गया था, ये आपको जानना जरूरी है। आई थिंक आज हम बहुत टाइमली ख़त्म कर देंगे, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। कब प्लांट प्रोडक्ट्स आर बायोटेक्नोलॉजी अप्रूव्ड फॉर फूड यूज हैव बीन मॉडिफाइड टू कंटेन ट्रेड्स सच है। क्या क्या ट्रेड्स हैं, हम जीएम में क्या क्या ट्रेड्स लेते हैं डेवलप। पहला इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए या डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, डिजीज न लगे तो। वाई इंसेक्ट एंड डिजीज, it is estimated that near about 20-25% our food is totally damaged by weed, insect, rat, bird and weeds। पैदा हो रहा है, but this percentage damage, suppose we are able to protect this 25%, there will be sufficient quantity of food in our country, even throughout the globe। इतना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जीएम डाल दिया या इंसेक्टिसाइड डाल दिया, दो ही तो काम करें। इसमें क्या है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस, डिजीज रेसिस्टेंस, हार्बी मीन्स वीड या हर्ब एक ही चीज़ है जो अनवांटेड प्लांट होते हैं पौधों। आजकल नाउ डेज पैडी क्रॉप इज प्लांटेड। पैडी में क्या, पैडी की तरह एक धान और आ जाता है, एक पेड़ और आ जाता है, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड राइस। वाइल्ड बिल्कुल धान की तरह होता है, दैट लुक्स एग्जैक्टली सिमिलर टू धान, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। फार्मर्स पहचान लेंगे, टच करते ही पहचान लेते हैं, उसको निकाल दे, वीड आउट कर देते हैं वो। थोड़ा लंबा होता है धान से, हाँ वो धान से थोड़ा लंबा होता है, उसकी चावल ही मोटी होती है। हाँ, और वो धान जो है आपका थोड़ा छुएंगे तो ऐसे स्पाइनी होता है। जो वीड लुक सिमिलरली, दैट एग्जैक्टली सिमिलर टू द धान पैडी, लेकिन वो स्मूथ होता है, वो आप नहीं पहचान पाएंगे। देखिए साइंस नहीं आती है किसानों को, लेकिन दे आर बेटर देन अस, वो सब जानते हैं। अल्टर्ड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बदल दिया। जैसे पोटैटो में अभी आएंगे बताने, इनहेंस स्टोरेज लाइफ। अब जैसे टमाटर ख़राब हो जाता है, जल्दी पिलपिला हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो वी कैन इनहेंस सेल्फ लाइफ या कीपिंग क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी में उसको जी की तरफ। अब क्या है, जीएम क्रॉप्स में 3 ही 4 सुना था ना अभी तक, हम आपको लिस्ट बता दे रहे हैं। जीएम क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड विद ट्रेड्स, अल्फा इज ए ग्रास, प्रोटीन रिच। In Ladakh area, this is grown largely, widely and most economic grass of the Ladakh। ये पोनीज और याक को खिलाई जाती है। आर्मी भी खरीदती है, खूब कांटेक्ट करती है आर्मी। हमारे आर्मी में क्या है, ट्रांसपोर्ट एनिमल्स होते हैं ना, म्यूल्स होते हैं, घोड़े, हार्सेस, उनको खिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसे कांटेक्ट होते हैं। वी हैव वर्कड ऑन दिस। तो ये क्या, हर्बिसाइड टॉलरेंस, अल्टर्ड लिग्निन, हर्बिसाइड टॉलरेंस हो गया ये। अब इसके अगर वीड होगा तो कोई फर्क नहीं, और अल्टर हमने इसमें लिग्निन बढ़ा दिया। लिग्निन से क्या होता है, हमने बायोडीजल बताया था कि नॉट ओनली ऑयल से ही हम बायोडीजल नहीं बनाएंगे। अब हमने लकड़ी को, पूरे लकड़ी क्या रेट से इसको एक देयर इज टेक्निक ऑफ पायरोलिसिस के थ्रू भी हम इथेनॉल और हम बायोडीजल बना देंगे। तो हम लिग्निन उसमें बढ़ा दे रहे हैं, राइट। लिग्निन क्या होता है, जो रेसे वाली सब्जी हमें खानी चाहिए। क्यों, रेसे की सब्जी नहीं खाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है। रेसा जब हम खाना खाते हैं, रेसा वाली सब भिंडी है, बारले है, इंटेस्टाइन में जाती है, तो उसमें पूरी इंटेस्टाइन के अंदर की लेयर पे वो बेड बन जाती है, ताकि जो कोर्स ग्रेन हमने खा लिया, अमरूद खा लिया, अमरूद जब खाते हैं तो लीलते चले जाते हैं। इट इज आवर इंडियन है भी। अब बीज वो चला गया, बीज तो कूचा नहीं, बस लील गए, मक्का चबा गए। तो ये कोर्स ग्रेन, अब मक्का को तो हमारी इंटेस्टाइन के इंटरनल लेयर कैन नॉट टॉलरेट ना, वो चुभेगा, लड़ेगा तो देयर शुड बी इंजरी, वहाँ पे अल्सर पैदा हो जाता है। इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर। नाउ
एप्पल काटिए, इमीडिएटली इट बिकम्स आफ्टर सम टाइम ब्राउन, फिर कोई खाता तो नहीं फेंकने के अलावा, या चाकू से काट करके। तो नान एक इसमें डाल दिया गया, नान ब्राउनिंग, ऐसा एप्पल आ गया, नान ब्राउनिंग हो गई। बीन सेम, फ्रेंच बीन या कोई बीन कहिए, बोड़ा भी बीन की वैरायटी है, लेकिन लंबी है। बीन की कई वैरायटी है ना लोकल। वायरस डिजीज है बीन में, इसकी पत्तियां देखिए ना, या बीन पे देखिए तो भूरे भूरे स्पॉट हो जाते हैं पत्तियों पे, वायरल डिजीज है, उसका बना दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। एग प्लांट नया नाम आ गया, ब्रिंजल को इसीलिए मैंने ब्रिंजल ना लिख के एक प्लांट लिख दिया। ब्रिंजल को एक प्लांट भी कहते हैं, अंडे के जैसा दिखता नहीं, इसमें इंसेक्ट। पहले ब्रिंजल आए थे, तमाम छेद पड़े रहते थे, आप उसमें पता चला कि क्या है, कीड़े हैं। और तमाम ब्रिंजल लाए, छेद पूरा ढक गया है, दिख नहीं रहा है, जब काटेंगे तब उसके अंदर कीड़ा होता है। तो उसका जो बोरर होता है, फ्रूट बोरर, उसका एडल्ट लेज एग्स ऑन द सरफेस, अ लार्वा हैचेज आउट ऑफ द एग एंड बोर्स इनसाइड। जैसे बोर गया उसकी हीलिंग हो जाती है, उसके पूरा बंद हो जाता है, पर अंदर खा पी रहा है, आप खाते चले जा रहे। लाइक इन गुआवा, आजकल जुलाई के गुआवा में कीड़े होते हैं, तो गलती से खा मत लीजिएगा। फ्लैक्स लिनसीड क्या है? अलसी का तेल खाया कि नहीं खाया? हाँ, अलसी का तेल बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही हम लोग खाना चाहिए। ये क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंस, अलसी का तेल बहुत ज़्यादा खाना चाहिए हम लोगों को, एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम लोग तो अलसी का तेल बचपन में रोटी और उसमें नमक डाल के खा लेते थे आराम से। आप लोग तो शायद, मैं समझता हूँ 99% देखा ही नहीं होगा अलसी लोगों ने, आप लोगों ने। मेलन जानते हैं? हाँ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, एक तरबूज है, एक खरबूज है। ये क्या होता है? एक ये बहुत, इसके डिलेड राइपनिंग कर दी गई है। एक साथ पक जाता है तो ख़राब हो जाता है, ऊपर से तो हरा हरा दिख रहा है, लेकिन जब अंदर पक काटोगे तो उसका पल्प जो है, मस्क जो है, वो खाने लायक नहीं रह जाता, पिलपिला हो जाता है, आपको देखेंगे अजीब सा हो जाता है वो। तो उसका जो है क्या कर दिया इसमें, डिलेड, उसकी राइपनिंग डिले कर दी गई। पपाया डिजीज है, पपाया की पत्तियों में देखिए कर्ल हो जाती, कर्ल मुड़ जाती, देखा पर उसमें पपाया में क्या होता है, उसमें भी वायरस होता है, तो उसको कर दिया। पपाया भी आपने सुना, डेंगू जिसको हो जाता है, सुना है? पपाया की पत्ती को ले जाकर के उबालते हैं, कोरोना में भी खाते हैं, दैट इज वेरी मेडिसिनल, हाईली मेडिसिनल, राइट। प्लम, व्हाट इज प्लम? आड़ू बुखारा, ये पहाड़ का है, खूब बिकता है। आप खरीद तो लेते भैया, क्या भाव दिए, नाम हम पूछना चाहिए आपको थोड़ा सा। और दिस इज़ द वे टू लर्न इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश भी जाननी चाहिए, ऐसे जानेंगे। हाँ, एक तो होती है एप्रिकॉट, खुमानी। प्लम गोला गोला होता है, ठीक है, बहुत अच्छी। प्लम डिजीज रेसिस्टेंट डिजीज बना दिया। पाइनएप्पल, अनन्नास, ये डिलेड राइपनिंग, इसको डिलेड और मॉडिफाइड फ्रूट्स का कलर भी बदल दिया गया, इसकी राइपनिंग एक साथ ना हो। शिलांग में जाइए, शिलांग में हर जगह इसकी खेती होती है, नॉर्थ ईस्ट में, और लुगा रहता 1-1 रुपए का बिकता है, यहाँ तो 25, 30, 40 रुपए का बिकता है शिलांग में। रोज, और लोग खूबसूरत है ना, आते हैं देखिए, बुके देते हैं। व्हाट इज बुके? बंच ऑफ फ्लावर। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ बुके? एनीवन? राइट, देखो अब गलती नहीं होनी चाहिए, उधर क्या बोला? BO, हाँ सही बोला, यस, फिर से रिपीट करिए। राइट, इसलिए नहीं आता कि बुके जो है, बुक नहीं, बुके, दिस इज फ्रेंच वर्ड, नॉट इंग्लिश वर्ड, बुके, बंच ऑफ फ्लावर। तो आप रोज के फ्लावर्स देते, खूब देते हैं लोगों को, आपस में देते हैं, ऑनर करने के लिए, सम्मान के। मॉडिफाइड फ्लावर, इसके कई कलर आ गए हैं। नाउ सेफ्लावर, सेफ्लावर क्या है? व्हाट इज सेफ्लावर? होली में जब होलिका दहन होता है तो देखा है कोई पौधा ले जाके वहाँ जलाते हैं। सर उसको बोलते हैं रजवा। एक तो जौ, नो बर रहे हैं, जौ अलग है, गेहूं जौ तो ले ही जाते हैं।
एक पौधा होता है सेल्फ फ्लावर बढ़ रहे हैं, उसमें गोला गोला लहसुन की तरह फ्रूट होता है, पत्तियों में कांटे होते हैं, आपने देखा ही नहीं। बड़ी वेरी अजीब सी बात है कि आपको सब आना चाहिए, सब सेल्फ फ्लावर देखना चाहिए। इसलिए शहर में ही मत रहिए, थोड़ा से कभी रूरल इंडिया की तरफ भ्रमण किया करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू नो। आप किसानों, ये मत समझिए कि IAS PCS की तैयारी करें, किसानों से भी जानकारी ले लीजिए थोड़ी सी, क्या है ज़रूरी है। नाउ ऑयल के लिए होता है मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी, स्क्वैश कद्दू, कद्दू को क्या कहते हैं बताइए? हाँ, पंपकिन। एक भूरा वाला होता है कद्दू, अरे, और एक पीला पीला होता है जो आपको हमारे यहाँ शादियों में पत्तल पे फेंक देते हैं, भज भज कहते हैं, राइट। एक ये ग्रीन कलर का आता है, छोटा छोटा लंबा लंबा ग्रीन कलर का, देख गोला ग्रीन नहीं, लंबे लंबे ग्रीन, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, वो स्क्वैश होता है, वो भी कद्दू का वैरायटी, ठीक है। तो इसमें डिजीज रेसिस्टेंस में डिजीज कम कर दिया गया। नाउ शुगर बीट, चुकंदर, शुगर बीट आल्सो यूज फॉर शुगर फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है शुगर के लिए। हर्बिसाइड टॉलरेंस, शुगर केन वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, वेरी, मेज तो एटॉमिक प्लांट कह सकते हैं। शुगर केन का हर पार्ट, बगास, इसका शुगर, एथेनॉल, सब कुछ, एथेनॉल भी बनता है, एनर्जी मिलती है, गैसीफायर से बायो एनर्जी बनती है, बायोगैस भी बनती है, बायो फर्टिलाइजर बनता है। तो शुगर केन का इंसेक्ट, शुगर केन में इंसेक्ट बहुत लगते हैं, टॉप बोरर, स्टेम बोरर, शूट बोरर, रूट बोरर, बहुत, देयर इज लॉट ऑफ डैमेज बाय इंसेक्ट। तो उसके लिए इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड ड्राउट टॉलरेंस, इसमें पानी की जरूरत होती है, इसलिए सूखे से बचने के लिए इसमें जीन डाल दिया गया। स्वीट पेपर, रेड पेपर, ग्रीन पेपर, स्वीट पेपर। रेड पेपर क्या है, ग्रीन पेपर क्या है? अरे भाई, ब्लैक पेपर, ब्लैक पे काली मिर्च, तो ग्रीन पेपर लाल हरी मिर्च, रेड पेपर, और स्वीट पेपर शिमला मिर्च, कैप्सिकम, राइट। तो इसमें क्या डाल दिया? बहुत लोग अमेरिकन डिजीज रेसिस्टेंट, व्हीट, यू नो, हर्बिसाइड टॉलरेंस, कैनोला, रेपसीड, ये मस्टर्ड की एक वैरायटी होती है, मस्टर्ड में कई वैरायटी, कैनोला, हर्बिसाइड, इसका बहुत ज़्यादा पूरे देशों में, फॉरेन में बहुत ज़्यादा इससे बना रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं और इथेनॉल बना रहे हैं। हर्बिसाइड टॉलरेंस, मॉडिफाइड ऑयल एंड, इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस बना दिया, इसका ऑयल और अब एसिड मीन फैटी एसिड जिससे ऑयल बन, इसका हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, परसेंटेज बढ़ा दिया। पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, पॉलिनेशन कर, इसमें पॉलिनेशन कंट्रोल हमने कर दिया कि सेल, दो तरह के क्रॉप होते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेटेड, उसको हमने ठीक कर दिया। सिस्टम, फाइटेज प्रोडक्शन, फाइटेज हमने बढ़ा दिया इसमें, फाइटेज पे हम डिटेल में बताएंगे भी। मेज, हमारी मक्का एक फसल है जो आजकल भुट्टा खूब खा रहे हैं हम। अब इसमें क्या है, ये स्वीट पेपर है, आपने भुट्टा में आजकल एक आ गई स्वीट कॉर्न, गलती से ले लिया है कि नहीं कभी? एक तो भून के खाते हैं नींबू लगा करके, सेकंड मोटा मोटा आएगा स्वीट, वो मीठा होता है, वो गलती से ला के भून के मत खा लीजिएगा, इजी ऑफिस में, वो बॉयल करके खाना, दैट इज स्वीट, मीठा मीठा होता है वो स्वीट कॉर्न। तो मेज में एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, एबायोटिक, देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, एबायोटिक एंड बायोटिक। अगर एयर, वाटर, सॉयल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं एबायोटिक। बायोटिक मीन्स किसी एनिमल से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, रैट से, बैट से, नीलगाय से होते हैं, उसको कहते हैं बायोटिक। एक तो एबायोटिक में मतलब मेज में क्या, एबायोटिक मान लो सूखा पड़ गया या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ भी ग्रो करेंगे, जीन डाल दिया गया। अल्टर्ड ग्रोथ ईल्ड, इसकी ईल्ड बढ़ा दी गई। टॉलरेंस, अच्छा एक ही है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट बहुत इसमें भी लगता है, उसको बदल दिया गया। मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी, अब मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी क्या आ गया? मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें क्या है? मॉडिफाइड अल्फा माइलेज, लाइजीन, बूस्ट, फाइटेज, अमाइलेज, ये क्या होता है? सब स्टार्च, माने स्टार्च का टाइप होता है, इससे पेपर, फिल्म इंडस्ट्री, तमाम कपड़े में काम आता है, ये बहुत कुछ इससे बनता है। तो इसकी मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी से क्वालिटी को बढ़ा दिया गया, इसे मैक्सिमम इसमें हाई परसेंटेज कर दिया। टोमेटो,
टोमेटो में डिजीज रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, डिलेड, ये भी डिलेड राइपनिंग, देर से पकती है, एंड डिलेड फ्रूट सॉफ्टनिंग। दो तरह के जीन डाल दिए गए, एक देर से पकेगी, दूसरा अगर तोड़ के रख, आजकल देखा है आपने, आजकल टमाटर आ गए पिलपिले नहीं है, रख दीजिए हार्ड हार्ड, देर बहुत देर से वो करते हैं वो। दो दे आर नॉट जीएम, वो जीएम नहीं है, जीएम नहीं है, लेकिन अभी वैरायटी बना दी जा बनी हुई। नाउ 20 सोयाबीन, सोयाबीन इज फेमस फॉर ऑयल, हम लोग खाते हैं एडिबल ऑयल है। सोया फॉर्चून, क्या बोलते हैं ना, मस्टर्ड फॉर्चून खरीदते हैं आप, फॉर्चून के कई वैरायटी है, ग्राउंडनट के भी है, इसके भी है, फॉर्चून एक कंपनी का नाम है। अब सोयाबीन का है, मस्टर्ड का है, ग्राउंडनट किसका है, यू नो, सोयाबीन का ऑयल। अब फॉरेन कंट्रीज दे आर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल, इथेनॉल फ्रॉम सोयाबीन, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर रिच इन एडिबल ऑयल, और वी आर इन सॉर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। हमारे पास एडिबल ऑयल खाने वाले तेल की कमी, इसलिए हम इसको बायोफ्यूल में या इथेनॉल में हम उसमें नहीं बदल सकते, हमारे पास ऑलरेडी कमी। तो सोयाबीन में हर्बिसाइड टॉलरेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी, अल्टर्ड ग्रोथ, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, मॉडिफाइड ऑयल फैटी, यानी कि ऑयल परसेंटेज बढ़ा दिया गया, फैटी एसिड बढ़ा दिया गया। राइस, चावल जो चल रहा है, हर्बिसाइड, इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं वीड्स, एक बार तो निराई करना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो धान आपका हो नहीं पाएगा। इंसेक्ट रेसिस्टेंट, एंटी एलर्जी, मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी, अभी मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी एंटी एलर्जी का जीन डाल दिया गया। अब आपको फर्स्ट डे बताया था कि अभी गोल्डन राइस बनाया गया है, राइस को गोल्डन राइस बनाया टू इंट्रोड्यूस प्रोविटामिन ए, प्रोविटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको डाल देने से हमारे पास बच्चों में नाइट या लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। इसके कितने लाख बता, हर साल 5 लाख कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग 2.5 लाख मर जाते हैं, सब बता दिया मैंने। तो ये क्या है, मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्या है, मॉडिफाइड स्टार्च, अरे सॉरी यहाँ पे बायोफोर्टिफाइड विथ प्रोविटामिन, हमने बायोफोर्टिफाइड, देखो वही आगे फोर्टिफाइड पे, तो बायोलॉजिकली फोर्टिफाई कर दिया, क्या इसमें डाल दिया गया प्रोविटामिन ए, ताकि हमारी ब्लाइंडनेस बच्चों की दूर हो जाए, एंड एंटी एलर्जी। पोटैटो, पोटैटो में बहुत इंसेक्ट लगते हैं, डिजीज भी। एक बार पोटैटो खेत जिसने देखा, कीड़े तो लगते हैं, पूरा एक झुलसा रोग लग जाता है। सपोज सम ऑफ यू हैव सीन पोटैटो, फिर पूरा का पूरा प्लांट जल जाता है एकदम से। दैट इज नॉट इंसेक्ट, दैट डिजीज, एकदम बर्न लगेगा, आग लग गई है, कुछ नहीं मिलता है हमको। तो डिजीज रेसिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंस, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई स्टार्च, मॉडिफाइड रिड्यूस्ड एक्रिलामाइड, पोटेंशियल नॉन ब्रूजिंग, फंगल डिजीज रेसिस्टेंट। अब आपको मॉडिफाइड, इसमें स्टार्च हमने बढ़ा दिया। हमने पहले लेक्चर में बताया था कि नाउ हम इस स्टार्च से बायोप्लास्टिक बनाने जा रहे हैं। हमारी तमाम कंपनियां ग्लोबली या इंडिया में भी स्टार्च को बढ़ा करके, आलू खाई भी जाती है इसी स्टार्च से बायोप्लास्टिक, बिकॉज की थिन प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, उसको बैन किया जा रहा है, तो उसका अल्टरनेट हमें ढूंढना है, तो इसके स्टार्च से बायोप्लास्टिक बना देंगे। कॉटन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, लो गॉसिपियर। एक छोटा से अलग से हम बता देते हैं, अब इससे रिलेटेड 2-3 स्लाइड है, ठीक है। आई थिंक वी हैव ऑन टाइम, वी आर ऑन टाइम हियर नाउ टुडे। अभी 10:30 है, 1 घंटा तो हो गया, ओके, जस्ट 5 मिनट्स। और बायोपायरेसी कहते, पायरेटेड CD है, सुना है ना, पायरेटेड। अब यहाँ है शब्द बायोपायरेसी, बायोपायरेटेड। आपने सुना कि हल्दी हमारी अमेरिका वाले उठा ले गए, हमारा राइस बासमती अमेरिका वाले उठा ले गए, अपना पेटेंट दाखिल कर दिया। वो तो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ने उनको वापस करना पड़ा। हमें नीम को भी ले गए थे, सब बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सब वापस करना पड़ा, उनका सब खारिज कर दिया गया। वो अपना जाकर क्लेम करने लगे, नीम इन इंडियन प्लांट। तो उसको बायोपायरेट कैसे करें, बायोपायरेसी इज द नेम गिवन टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड प्लंडरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्लंडरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, हेरा फेरी बायोलॉजिकल रिसर्च एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। सिर्फ मटेरियल के, हमारे नॉलेज का, जैसे हमारा कोई संगीत ले जाके चुरा लिया, वो भी ट्रेडिशनल नॉलेज, स्पेशली ऑफ
अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, हम ज़्यादातर वो लोग डेवलप कंट्री के या तो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज ले जाते हैं। वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलप कंट्रीज यू नो, आपने G8 G20 सब पढ़ ही रहे होंगे तो सब जानते हैं। ये हमारी चीज़ों को उठा के ले जा करके, चाहे हमारी लैंग्वेज हो, चाहे हमारे कल्चर्स हो, चाहे हमारी प्लांट्स हो या नॉलेज को, कंट्रीज कब विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, हम उन्होंने किसी से लेते नहीं, गवर्नमेंट से कोई परमिशन से, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, दैट इज बाय वायलेटिंग द रूल्स ऑफ बायो पेटेंट आर बाय हाइडिंग नॉलेज अबाउट द स्पीसीज इन क्वेश्चन बिफोर ऑब्टेनिंग द पेटेंट। ये हमने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया, नाउ यू रीड इन डिटेल। अब इतना हमने आपको जरा सा बता दिया। नाउ एक और बता दूं, BC का एक चीज छूट गया था। BC हमने बताया था इन 1996 इट वाज 1.7 मिलियन हेक्टेयर थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे विश्व में, और इन आफ्टर 18 ईयर्स यानी 2013-14 एरिया इंक्रीज 175 मिलियन यानी 100 फोल्ड्स। नाउ डेज इट इज 190 मिलियन हेक्टेयर, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ मच फूड ग्रेन वी हैव बीन यानी ग्लोबली वी हैव बीन एबल टू ग्रो, वो दिया है। पहले जान लीजिए, हमने ग्रो किया 377 मिलियन टन GM क्रॉप से। हमने अपना पूरा विश्व में कितना है 377 मिलियन टन हमने ग्रो कर लिया। इसका अभी महत्व बता रहे हैं। 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट, रिच ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वी आर लूजिंग एवरी ईयर। ग्लोब में, पूरे विश्व में 13 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच, हम बायोडाइवर्सिटी के क्लास में बता, बायोडाइवर्सिटी रिच ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वी आर लूजिंग, एंड इन इंडिया वी आर लूजिंग 1.5 मिलियन हेक्टेयर। हम इंडिया में 1.5 मिलियन हेक्टेयर हम लूज कर रहे हैं। अभी तो हमारा थोड़ा चेक हो गया है, हम फॉरेस्टेशन पे ज़्यादा या फॉरेस्टेशन में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन इतना हम लूज कर रहे हैं। इसका इफ द 377 मिलियन एडिशनल फूड, if the 377 million additional food, feed and fiber produced by biotech crop during the period 1996-2014 had not been, अगर कह रहा had not been produced by biotech crop, additional, इसके लिए हमको क्या मिलता है? अगर ये बायोटेक से नहीं पैदा करते तो हमें कितना, हमें एडिशनल 132 मिलियन हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू बुकर्स एंड Barefoot 2000 of conventional crops would have been required to produce the same. कह रहा है कि अगर 377 जो मिलियन टन फूड अगर होगा, अगर बायोटेक से नहीं पैदा होता तो हमको इसको, हमें ट्रेडिशनल क्रॉप जहाँ है इतना पैदा करने, ट्रेडिशनल क्रॉप से ग्रो करने के लिए, ट्रेडिशनली हमको ग्रो करने के लिए नॉन बायोटेक से क्या, हमको बहुत बड़ी ज़मीन की आवश्यकता पड़ती। जमीन कितनी है टोटल? 1.5 बिलियन हेक्टेयर ग्लोबली अंडर प्लाउ मीन अंडर एग्रीकल्चर, एंड 175 मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया। मिलियन, वहाँ बिलियन के बाद मिलियन, दैट हैज रिड्यूस टू 145 मिलियन। हमारे पास अभी और घट गई। अब अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड से हमें 377 मिलियन टन पैदा नहीं होता तो हमको 132 मिलियन हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता पड़ती। कहाँ से? सर्टेनली कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता हमें। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमें इससे बेनिफिट होगा। यही चीज़ बता दिया। एनीवे नाउ एक स्लाइड और थोड़ा हम बता दें कि हम लेक्चर में हंसाना चाहते हैं आपको, थक गए हैं तो गेट एनर्जाइज्ड लिटिल बिट, ठीक है। ये इन्होंने इनका किसी बर्नार्ड शॉ ने कहा है, आप कैसे सब टायर्ड हो, हम सबका चेहरा देख रहे हैं, कुछ लोग बेचारे टायर्ड लग रहे हैं। ये कौन? ये तो रात दिन करते हैं, टायर्डलेस हैं, ये टायर्डलेसली काम करते हैं, सब टायर्ड। तो इसको देखिए, टायर्ड ऑफ वर्किंग, काम करने से टायर्ड हो गया। सुनिए एक एक, इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु ऑफन फील्स टायर्ड आर लेजी। इसका चैप्टर नहीं है सारी जेनेटिकली, लेकिन आपको एक समझाने के लिए, टायर्ड आर लेजी, इट इज यूजफुल टू रिमेंबर द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ नॉन फिगर जानते हैं आप? क्या कहते हैं? द ईयर हैज 365 डेज, होता नहीं, ऑफ 24 आवर्स,
12 hours are dedicated to night, okay, time, and making a total of 120 days. 12 घंटे तो नाइट में निकल गए, तो जो 12 घंटे बचे तो हमारे तो 182 दिन 82 दिन हुए ना. There remains 183 days यूजेबल डेज. इतने 182-83 दिन हमारे, 365 दिन है ना, तो एक तो 182 होगा, 183 होगा, ये यूजेबल डेज. लेस 52 संडेज, संडे को छुट्टी होती है. लिविंग 131 डेज, लेस 52 सैटरडेज भी आजकल छुट्टी होने लगी है ना, कोरोना से होने लगी. तो अब बचा कितना? लिविंग टोटल ऑफ 79 वर्किंग डेज, राइट. हाउ 79 वर्किंग डेज में आप कैसे काम करते हैं, जो कहते थक गए. However, 4 hours daily are dedicated to eating, totaling 60 days. 4 घंटे अगर खाना खाते हैं प्रतिदिन तो आपको कितना बचा? 60 days. And therefore we are left with 19. हमारे पास सिर्फ 19 दिन बच रहे हैं, right? Dedicated working, but as you enjoy 15 days of holiday, 15 दिन हॉलीडे में चाहिए ना. 15 अगस्त, 26 जनवरी, दशहरा, ईद, बकरीद, हॉलीडे. There only remains 4 working days, 4 ही बचे दिन. Less approximately 3 days that you will enjoy through illness. 3 दिन तो कहेंगे यार आज तो मेरे कमर में दर्द है, सर दर्द है, तो बचा कितना? 1 दिन. You are therefore left only 1 day, but this day happens to be unluckily or luckily the first of May, which is public holiday. तो सो वाई फील टायर्ड, क्यों थकान क्यों फील कर रहे हैं? आपने कहाँ जगह यार? 365 में 182 दिन तो रहते हैं दिन भर. हु सेज कि आप 2 बजे, उसका दूसरा लीजिए. कौन? हु मॉनिटर्स यू, हु एडवाइजेज यू, हु एडवोकेट्स यू, हु टीचेज यू टू रीड अप टू 2 o'clock नाइट. कौन कहता है? कौन कहता है रात 10 बजे खाना खाइए? भाई बेस्ट थिंग, गांधी जी ने कितनी अच्छी बात बताई थी. दिन डूबने से पहले खाना खा ली. तब तो बिजली नहीं थी ना, बहुत कम थी. क्यों कहते थे? उसमें साइंस थी, विज्ञान था, कंजर्वेशन था, नेचुरल इकोसिस्टम, सब सिस्टम था. आप ताकि आपको तब केरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ती थी, आप ताकि उतनी एनर्जी बचा लेंगे. आप जब खाने में ही अपनी केरोसिन ऑयल जला देंगे, लैम्प जला के खाएंगे तो बचा लेंगे. आप उसको पढ़ने में लगा दीजिए तो आप समझे टायर्ड ऑफ वर्किंग. एनीवे सेम चीज़ आ गया. तो इन द एरा ऑफ अर्बनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही सब हमारे कल्प्रेट्स हैं. ऑल आर एंथ्रोपोजेनिक. ध्यान दीजिए, ऑल आर एंथ्रोपोजेनिक, मैन मेड, नेचर ने मैन मेड. हाउ टू सेव लाइफ, फिर वही आ गया. अब लाइफ फिर उसी से जुड़ा रह गया. और प्लांट भी हमारा, ये ट्रांसजेनिक भी, जीएमओ भी, हाउ टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, या हाउ टू सेव अर्थ, हाउ टू सेव अर्थ, हाउ टू मेक अर्थ लिवेबल. तो अपनी पृथ्वी को कैसे बनाएं. ट्रांसजेनिक क्राफ्ट में प्ले वाइटल रोल इन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो आई डोंट प्रोवोक, आई डोंट से दैट यू गो फॉर ओनली ट्रांसजेनिक फूड क्राफ्ट. नॉन फूड क्राफ्ट में हम उसमें जा सकते हैं. कि दिस इज माई फर्स्ट सेशन वर आई जॉइंड नियर बद्रीनाथ एट ओली. ओली हैज़ बिकम इंटरनेशनल सेंटर इन इंडिया, इन गढ़वाल. ये हमारा देख रहे हैं, ये ऐसे घरों में हम रहते थे, वहाँ काम करते थे. 1980 में पॉली हाउस, ग्लास हाउस की आज जो बात कर रहे हैं हम तो 40-50 ईयर्स पहले से कर रहे हैं. तो एनीवे चलिए, एनीवे अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप बात कर लें. तो सो ऑन वी फिनिश दिस चैप्टर. Nowadays I will start my lecture on biodiversity. Already biodiversity has been covered by Madam Iti Pandey very nicely. I appreciate her lecture, but I would also like to explain something so as to make you more clear one thing and so as to get everything remembered by you. थोड़ा से याद हो जाएगा. Revision, there must be revision. I don't say that is my separate lecture. एक तरीके से रिविजन हो जाएगा. There may be many more things little bit different and you must know. Thank you guys.